हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, कबूली के शब्द होते हैं ये, और इन शब्दों को अगर हम हिंदी भाषा में बोलना चाहेंगे तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहो तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, थैंक यू for the precious gift of the Holy Spirit, whom you sent to lead and guide me through life in fulfilling my destiny in Christ. Through my fellowship with the Holy Spirit, I rule and reign over the forces of darkness, the world, and its systems. In Jesus' name, आमीन। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद हो। तूने बहुमूल्य वरदान जो पवित्र आत्मा है वो दिया। उसको तू इसलिए भेज दिया कि वो मार्गदर्शन करे और अगुवाई करे मेरी जीवन के द्वारा, कि मैं मसीह में रखी हुई मंजिल पूरी कर पाऊं। मेरी सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ होने के द्वारा मैं चलाता हूँ और राज्य करता हूँ अंधकार के सारे जोरों पर, जगत और उसकी व्यवस्था के ऊपर भी, यीशु नाम में, आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है जॉन 16 चैप्टर 13 वर्स, प्रोवर्ब्स 1 चैप्टर 24 to 33 वर्स, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन, नीति वचन 1 अध्याय 24 से 33 वचन। हम मनन करने के ये वचन है, हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू। जॉन 16 चैप्टर 13 वर्स, हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से जॉन 16 चैप्टर 13 वर्स। हाउ बीट when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come। और एक बार पढ़ेंगे जॉन 16 चैप्टर 13 वर्स, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। हाउ बीट when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come। यही हम
वचन को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 13 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन से। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रोवर्ब्स 1 चैप्टर 24 वर्स से 33 वर्स हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 1 चैप्टर 24 वर्स से 33 वर्स तक हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे हैं। बिकॉज आई हैव कॉल्ड एंड ये रिफ्यूज्ड, आई हैव स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड एंड नो मैन रिगार्डेड, बट ये हैव सेट एट नॉट all my counsel and would none of my reproof. I will also laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind. When distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me, for that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. They would none of my counsel. They despised all my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of you. Evil, fear of evil. और एक बार पढ़ेंगे हम Proverbs, book of Proverbs 1 chapter 24 verse से 33 verse King James version में से। Because I have called and ye refused, I have stretched out my hand and no man regarded, but ye have set at naught all my counsel and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me, for that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. They would none of my counsel. They despised all my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. But whoso hearkeneth unto me
shall dwell safely and shall be quiet from fear of evil. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। नीति वचन 1 अध्याय का 24 वचन से 33 वचन तक पढ़ेंगे। नीति वचन 1 अध्याय 24 वचन से 33 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 1 अध्याय 24 वचन से 33 वचन। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। पहले अध्याय का 24 से 33 पढ़ रहे हम। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। थैंक यू जीसस। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने घुटनों के बल आकर अपने आप को नम्र करके आपके हाथों में दे देते हैं। कितनी ही बार पवित्र आत्मा तूने कुछ अगुवाई किए, मार्गदर्शन किए, समय समय पर तो हमको रोकने की कोशिश भी किया हो। हम मान लेते हैं कि हमने गलती करी, कि हमने तेरी सुनी नहीं। ये वचन सच्चा है। अगर हम तेरी सुनेंगे नहीं,
हमारी विपत्ति इंतज़ार कर रही है खुदा। वहाँ तक पहुँचने से पहले, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, अपने बैरी के साथ समेट कर ले जल्दी से, नहीं तो वो राह में है तभी समेट कर ले, नहीं तो वह तुझे अधिकारी के पास लेकर जाएगा, न्यायाधीश के पास लेकर जाएगा, हकीम के पास लेकर जाएगा और वो तुझे बंदी गृह में डाल देगा। मेरे खुदा परमेश्वर, जहाँ से एक एक दाम चुकाया ना जाए तब तक छुड़ाया नहीं जाएगा। मेरे पिता, हम पिता पवित्र आत्मा के पिता परमेश्वर अधीन आते हैं। जो भी पिता पवित्र आत्मा हमको अगुवाई किया है, मार्गदर्शन किया है, हम उसको अनसुनी करके अपने ऊपर हमने संकटों को लाया। हमें माफ़ कर, हमें माफ़ कर पवित्र आत्मा। हम तेरी सुनने के लिए अनुग्रह कर, तेरे मार्गदर्शन हमें प्रिय लगे और हम अपने मन की इच्छा नहीं, हम तेरी अगुवाई को सुनकर और तेरे मार्गदर्शन को आदर करते हुए तेरे सारी बातों को पूरी करते जाए जो तू कहता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। विपत्तियों को हमारी ओर बढ़ने मत दे। ऐसी समय पिता जिसमें हम पुकारेंगे और पवित्र आत्मा हमारी सहायता नहीं करेगा, इस प्रकार का कोई भी समय खुदा परमेश्वर हमारी जीवन में प्रवेश करने मत दे। वो सारा समय जो ठहराया गया है क्योंकि हमने पवित्र आत्मा का नहीं माना, वो सब समय के लिए हम आपको माफ़ी मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू से हमें धोकर शुद्ध कीजिए। पिता, हमें माफ़ कीजिए, हमारे ढीठ मन को माफ़ कीजिए, हमारे ज्ञान, बुद्धि, समझ, हमारे व्यवहार जो बोलने के बावजूद भी खुदा नहीं मान रहे हैं, जो पिता परमेश्वर तेरा वचन ऊंचे पर चिल्ला चिल्ला कर बात कर चुका है फिर भी नहीं मान रहे हैं, हमको माफ़ कर। और खुदा परमेश्वर, हमें एक बार दोबारा तेरी ओर मोड़कर तेरे इंस्ट्रक्शंस में चलाना शुरू कर और अनुग्रह के साथ हमें चला। अपनी दया को आगे बढ़ा हमारे लिए, ताकि हम उस इंस्ट्रक्शन को समझ पाए और उसके अधीन होकर आज्ञा पालन में उतार कर तुझे महिमा दे सके। नासरी यीशु के नाम में हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया वो हमें शुद्ध कर दिया, पापों की माफ़ी को दे दिया, हमारी रिहाई हो चुकी है। अब ना ही हम न्यायाधीश के आगे लेकर जाया जाएंगे, ना ही हम अधिकारियों के हाथ और ना ही हकीमों के हाथ सौंपे जाएंगे और ना ही वो हमें बंदी गृह में डाल पाएंगे, क्योंकि हमारा क्षमा यही हमारी पहचान है कि अब शत्रु के पास हमारे विरोध कोई बातें नहीं है और परमेश्वर के पास भी पवित्र आत्मा हमको माफ़ी हर प्रकार से हमारे जीवन में लेकर आया है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू हमारा जीवन सरल करने के लिए, हमारा जीवन सरल करने के लिए तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा। हमारा जीवन फिट एंड फिक्स करने के लिए तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू। हमें ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लाने के लिए तेरा धन्यवाद। नासरी यीशु के नाम में ये मनन किए वचन और ये सारी प्रार्थना के कबूली के शब्द हमारे जीवन में भरपूरी से बहुतायत की महिमा परमेश्वर के लिए लेकर आए। हम नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।